I'm starting now. Okay. So yesterday I left one question. Okay. So say I have a circuit given. Minus plus 1 volt. Okay. 0 plus we have one diode, and then plus minus 2 volts, and then we have here V output. Okay, I'm applying V input here. Okay, so let me check the resistance value. Is any resistance value is given? So resistance R, they are given R. Okay, so simply R. Okay, so in this question they're asking what is the range of input. Okay, find the range of find the range of input voltage Vi for which, okay, V input is equal to V output. Okay, so question is clear. I have to find the range of V input. Okay, so that my V output is always equal to V input. Okay, that means we have to see the transfer characteristics. Okay, so transfer characteristics मतलब V input और V output में ग्राफ प्लॉट करना है. Am I audible? Yes, sir. Okay, so you have to plot a graph between V input, okay, this is V output, and this is my V input. Okay, so you have to find the range. Okay, so कैसे करेंगे? And these diodes are given silicon diodes. Okay, so silicon diodes means they have cutoff voltage V gamma or VD0 0.7 volts. Okay, so now I have to find the range. For that I should get this V input equal to V output. That means ये दोनों ओपन होने चाहिए. ये दोनों ओपन होंगे तभी तो V input equal to V output मिलेगा. Correct? Yes, okay, so first of all I see the range. Okay, so if I replace this by battery, okay, suppose this is 0.7. okay, this is plus minus. Okay, so this total become 1 and 0.7 1.7. okay, so in negative cycle, okay, for negative cycle this is already negative cycle, this is already in cutoff. We have already 2 volts here. Okay, so this is already off. Now if I further applying negative cycle, so this will be always off in negative cycle. Okay, in negative cycle this is always off. Okay, and this is off until I don't apply minus 1.7. जैसे ही minus 1.7 जाएगा, okay, रिवर्स साइकिल में, रिवर्स मतलब ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस होते ही ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. So when I apply voltage greater than 1.7, then what will happen? This diode will become on. Okay, so once and this is always off. So this is on and this is off. So you get a voltage here. What is V not what is the voltage here? Volt. You get 1.7. Okay, if you apply minus 1.8, then also you get how much? Yes, 1.7. 1.7. Okay, that means 1.7 से नीचे जब भी जाएंगे, your voltage become constant. That means if I go here, okay, minus 1.7. okay, so my V input will be constant. After that V output will be constant. okay, जैसे ही अगर मैं V input में minus 1.7 के बाद जा रहा हूँ, then my output is always constant. okay, and negative cycle में ये off है. okay, and 1.7 से अगर ज्यादा voltage है यानी इस साइड है तो ये भी off है. That means in negative range you are getting this type of graph. Clear? Yes, sir. तो ये 2 वोल्ट वाला ऑफ. सर प्लीज रिपीट. हाँ भाई, अगर आपका जैसे ये minus 1.7 है
तो ये ऑन हो गया, तो ये 0.7 ये माइनस आपको सर्किट में माइनस 1.7 वोल्ट्स मिल गया आउटपुट में। ओके, ये हमेशा फिक्स हो जाएगा। 1.8 है इधर वी इनपुट, तो भी आपको ये मिलेगा। वी 1.9 है तो भी आपको ये मिलेगा। जैसे ही 1.8 से नीचे गया 1.7 से, देन द वोल्टेज इज फिक्स्ड वी दिस वन। ओके, उससे कम है जैसे 1.6 है तो -1.6 के लिए ये भी ऑफ है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। ओके, अच्छा सर, यस सर। so whatever voltage you apply, you will get this one. Okay, up to 0. Now in positive cycle, for positive cycle, okay, positive cycle में क्या? हाँ बोलो। एक बार ये -1.7 से जब कम हो जाएगा तो वो कैसा हाँ, ग्राफ, वो जैसे समझ जैसे में नहीं आ रहा है। जैसे -1.6 है, हम्म, ठीक है, तो -1.6 पे लिए ये तो ऑफ ही है, ये तो ऑफ है, करेक्ट, और यस, ये भी ऑफ ही है, क्योंकि इसको इसको क्योंकि इसको नीचे क्योंकि आपको ये -1 से तो ये आपको बायस लगा हुआ है ना, तो इसको अगर ऑन करना है, ओके, तो आपको मिनिमम वोल्टेज कितना चाहिए? 1 पॉइंट, यहाँ से अब माइनस में ये उल्टा जाएगा ना, तो आपको एक तो ये माइनस ये 1 लगाना है प्लस 0.7 लगाना है। ओके ओके, सो ये टोटल फॉरवर्ड में है ना, टोटल मिला नेगेटिव के साइकिल में तो फॉरवर्ड में है। हाँ, तो फॉरवर्ड या ऐसे फॉरवर्ड मान लो, ऐसे फॉरवर्ड मान लो। यस सर, ये अब नेगेटिव साइकिल में यस क्या है? सर। ये पहले नेगेटिव साइकिल में ये हो गया, अब ये फॉरवर्ड में ऐसा, ठीक है। तो आपको पहले तो ये इसके ये जो वोल्टेज आ रहा है इसके रिवर्स में ये है, तो पहले तो 1 वोल्ट लगाना पड़ेगा, फिर 0.7 लगाना पड़ेगा, दैट मींस माइनस में 1.7 लगाना पड़ेगा। 1.7 से कम कुछ भी है तो ये ऑफ है, ये भी ऑफ है, ये भी ओपन है। ऑफ का मतलब ये ओपन है, ये भी ओपन है, तो व्हाटएवर यू अप्लाइंग इज कमिंग हियर। ओके, नाउ पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल के लिए क्या होगा बताओ? ये वाला रिवर्स में है और 2 वोल्ट से ऊपर जाते ही फिर से 2 स्टार्ट हो वाला जाएगा। भी ये कितना है? ये इसको ऑन करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए? ये प्लस माइनस। ओके, तो ये वोल्टेज मिनिमम 2.7 तो चाहिए, 2.7। ओके, अगर 2.7 से ज्यादा है तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है, और ये भी ऑन ऑन। मतलब जाने लगेगा सर, ऑन मतलब शॉर्ट कर देगा, ऑन मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक। शॉर्ट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मतलब बैटरी से यू कैन रिप्लेस टू से बैटरी। ज्यादा हुआ तो वो शॉर्ट हो जाएगा ना। भी शॉर्ट का मतलब है कि इसको यू कैन रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट प्लस बैटरी। ओके, if you have diode, okay, and if you are applying, so I told you yesterday you can replace it by a battery, okay, plus diode short circuit हो गया, ठीक है। तो बैटरी तो रहेगा ना, बैटरी रहेगा प्लस ये 2 रहेगा 2.7, तो 2.7 से यस सर, यस गिव मी 1 मिनट, 2.7 से ज्यादा हुआ तो वो ऑन हो जाएगा ना। तो ऑन हो जाएगा क्योंकि 2.7 है। ओके, और तो ये 2.7 है, सो 2.7 के बाद में दिस आउटपुट विल बिकम फिक्स। ओके, और 2.7 से कम है तब क्या होगा? यस सर, क्योंकि 2.7 से कम है तब क्या होगा? जो इनपुट तो सर है वही आउटपुट ब्रेक कर मिलेगा जाएगा। लीनियर ओपन सर्किट राइट। भी ये भी ओपन ऑफ, सर्किट हो जाएगा। ये भी ऑफ हो जाएगा, ये भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाटएवर यू गॉट यू विल गेट दिस वन। इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज। ओके, सो आपकी रेंज क्या हो गई? योर रेंज बिकम -1.7 बाय 1 मिनट 1.7 टू 2.7। यस टेल मी सर। ये जो आपने लीनियर लाइंस बनाई है हाँ। -1.7 से 2.7, ये समझ नहीं आया सर, ये कैसे होगी? भी अगर ये दोनों ओपन हो जाएंगे तो जो इनपुट जो तो यहाँ पे करंट जाएगा ही नहीं ना, तो जो इनपुट लगा सर रहे हैं जाएगा फिर तो V0 0 जाना चाहिए। किसमें? V0 तो फिर क्योंकि R में ही वो हो जाएगा सर। आर कहाँ है इसमें भी? सर मतलब R में चला जाएगा ना सारा अरे तो voltage। ये कितनी बार बता चुका है, जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा ही ना। जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा तो रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉप होगा? ठीक है, ओके सर, ओके तो जितना जितना यहाँ आ जाएगा सीधा सीधा ही, ठीक सर। ठीक है। चलो, तो अब क्लियर है। तो ये एग्जाम, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम गेट ईसी में, ठीक है, उसकी रेंज पूछी थी, तो दिस इज द करंट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन हमारे पास भी, हमारे यहाँ पे भी आ सकते हैं, ठीक है। सो क्लियर, आगे चले। यस सर। ओके, now we have already seen constant voltage drop model
today we'll see complete model. Okay, complete model का मतलब है piece wise linear model. Okay, so piece wise linear model क्या है? That now you have this IV curve, ID. Okay, IV curve. Now instead of replacing straight line, you saying your diode has some resistance also. So if a diode has resistance, then you can mention, okay, your actual graph is what? Your actual graph of diode is ID versus VD. Okay, this is your actual graph. Okay, now you are approximating this graph with this one. You say you have some resistance. Okay, and this is, if you take the slope of this graph, forward bias, so slope I by V, that is 1 by resistance. Okay, so RF. So you're saying now that you are this is your cutoff voltage, say V gamma. I'm saying V gamma, V cutoff, you can say V cutoff. Okay, V gamma or V cutoff. Okay, and negative side the same, that you have a reverse bias, it will be, current will be 0, it will be open circuit. And for forward bias, now your diode, okay, now your diode can be replaced if ID is flowing. Okay, so your diode can be replaced short circuit. Okay, जो diode करेंगे वो तो करेंगे, plus battery plus one resistance RF, forward resistance RS. Okay, तो आप बैटरी में भी लगानी है, and then you have to assume that it has some small forward bias resistance also. Okay, so now you replace diode with a short circuit. Short circuit का मतलब ये आप diode यहाँ पे रख सकते हैं as it is. Okay, उसको short circuit मानेंगे, diode, बैटरी. ओके, और बैटरी कट ऑफ जो भी सिलिकॉन है तो 0.7 होगा, एंड जर्मेनियम है तो 0.3 होगा, and RF will be given in the question. Accordingly you have to use. Okay, so I'm giving one सर question. वो जो छोटे-छोटे डॉट निकाले वो क्या है? डायोड निकाला है, मतलब हमने शॉर्ट हुआ है ऐसा? कौन सा वाला? यहाँ डायोड की इक्विवेलेंट जो निकाला है उसमें जो ये मतलब वो शॉर्ट है, डायोड को शॉर्ट किया, डायोड को शॉर्ट किया है, ठीक है ना? वो हम अज्यूम करते हैं लेकिन डायोड, वोल्टेज 0.7 ही लेना है ना? हाँ वोल्टेज, मतलब इसको चाहे तो लाइन लगा दो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है. दैट मींस नाउ यू हैव टू भी, जब हम शॉर्ट करते हैं इसका मतलब वो हटा थोड़ी है, हमको सिंपलीफिकेशन के लिए बोलते हैं कि दिस इज इक्विवेलेंट. ओके, तो यू कैन रिप्लेस बैटरी एंड प्लस RF रेजिस्टेंस. ओके, यस, क्लियर. थैंक यू सर. ओके, सो नाउ so solve one problem. Okay, we have one resistance. Okay, we are applying 5-volt battery. Okay, and this is my diode. Okay, so resistance is 1 kilo ohm. Okay, so they are asking they are given cutoff voltage equal to 0.65, cutoff voltage V gamma. Okay, V gamma 0.65. Okay, and the forward resistance is given 20 ohm. Okay, so they are asking what is ID and what is drop across voltage and diode. So calculate current ID and the drop in voltage. Okay, so simple thing है, we have a सर हाँ सर कट ऑफ वोल्टेज मतलब क्या, कि मतलब उस वोल्टेज पे करंट नहीं जा पा रहा है, मतलब कट ऑफ वोल्टेज मींस व्हाट? अरे कट ऑफ वोल्टेज मतलब डायोड को ऑन करने के लिए मिनिमम वोल्टेज जो चाहिए, जो कल हम बैरियर पोटेंशियल निकाल रहे थे पीएन जंक्शन में, उसके बाद इतने सारे क्वेश्चन कल किए, अच्छा वो 0.6 0.3 नहीं बता रहे थे. ठीक है, दिस इज 5 volts and then this is R. Okay, now you can replace diode by a battery and plus you can short circuit. This is your diode. Okay, diode. Okay, and RF is 20 ohm. This is 1 kilo ohm. Okay, this is 20 ohm, 5 volts, and this is 0.65. Now you have to calculate ID. Okay, so ID कितना हो जाएगा? Both are reverse. You can apply KVL. So my ID will be 5 minus 0.65. Okay, resistance 1 kilo ohm.
1 plus change it 0.02. Okay, this is also kilo ohm. Okay, 0.02 to 20 kilo ohms. Okay, now solid 5.5 minus, and it become 4.35 divided by 1 point, this is kilo ohm. Okay, 1.02. Okay, this answer should come in milliampere. कितना आ रहा है? 4.26. 4.26 milliampere. Okay, so 4.26 milliampere is your answer. Okay, एक क्वेश्चन और करो. We have one battery. Okay, this is, and we have diode here, and we have 100 ohm resistance here. Okay, this is 9 volt battery plus minus 600 ohm, 300 ohm. Okay, and then 100 ohm, 100 ohm, and they given this diode is 0.7 silicon diode. Okay, and resistance value they are given 20 ohm. Okay, for this also they are given RF value 20 ohm. Okay, this is 0.7 and RF 20 ohm. Okay, so calculate now. सर ये 300 ओम है. ये 300 है, 600, 300, 100. Okay, so this is 300. Okay, this 100 and 0.6. Now replace. So I'm replacing here itself. Okay, so this is battery 0.7. Okay, plus this is resistance 20 ohm. Or here short circuit here, or diode you can put also. Okay, so कैसे करोगे इसको? निकालना क्या है? ID निकालना है. How much current is flowing through diode? KVL लगा के. हाँ, केवी कैसे लगा दो. ओके, या फिर जैसे मैंने लास्ट क्लास में किया था, इसका तुम वो निकाल लो. RTH. हाँ, आर थेवेनिन वी थेवेनिन निकाल लो इसका थेवेनिन थ्योरम से. ओके, तो और ये पूरा इस पूरे का तुम लोग मान लो लोड है. ओके, तो वो अगर इसको निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा? आर थेवेनिन कितना हो जाएगा? आर थेवेनिन हो जाएगा 600. कैसे भी करो, कोई दो बैटरी है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दो, केवीएल से कर दो, जैसा तुम नोड एनालिसिस से करो, जैसा तुम करना करो. ठीक है, 600, 900, 3, 200. ओके, सो 200 ओम तो इसका आर थेवेनिन हो गया, एंड वी थेवेनिन विल बी ओके 9/900 into 300. Okay, so this has become 3 volts. Okay, so I can make this circuit as a 3 volts. Okay, 3 volts and R Thevenin 200 ohm. Okay, and then I have a battery, then 20 ohm, 0.7. Okay, and then I have 100 ohm resistance. So now I want ID. Okay, so ID will be now 3 minus 0.7. Okay, this become कितना हो जाएगा? ये 320. 320. Okay, okay, and this become 3 minus कितना जाएगा? 2.3 upon 320. कितना आ रहा है बताओ? 7.18 milliampere. 7.18. milliampere. ठीक है, 7.18 or 19 जो भी है, 18 मिली एम्पियर. ओके,
So this is the correct answer. Clear है ये model? Okay. Now we'll solve some problems from exams. सर हाँ ये रेजिस्टर 320 हमने कैसे लिया? भाई ये प्लीज बताएंगे। 200 100 प्लस 20 320 हो गया ना। केवी लगा, सिंपल केवी लगा दिया। दो बैटरी है, 3 माइनस ये Yes. IR, उस आईडी आ गया। इस क्वेश्चन को तुम वैसे भी बिना VThevenin के भी करके देखो। दो बैटरी है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के देखो, या फिर मैश एनालिसिस करके देखो। ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। चले आगे। हाँ सर। Now we are starting rectifiers. Okay. So सबसे पहले लगता है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव rectifier. Okay. So what is half wave rectifier? You have diode. Okay. And across this you have resistance RL. Okay. And here you're applying a V input here. Okay. You're applying suppose sine wave. Okay. This is your V input. And you are measuring your V output. Okay. ये होता है, ठीक है। So this is your input. So this is your input. V input. Okay. So if I'm applying V input, okay, I should get some V output. So this is my V output. So what will happen for positive cycle? Okay, for half cycle, this become positive. Okay, sorry, just for positive cycle, this become positive, this become negative. Okay, so when it is positive, this becomes short circuit. This is ideal diode. Okay, ideal diode. Ideal diode means now it's not battery, it's not constant drop model. ID 0. Okay, VD equal to 0. Voltage drop is 0. Simply short circuit. So I'm applying when positive cycle. Okay, this becomes short circuit. Okay, तो शॉर्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि फॉरवर्ड bias है, ठीक है। And then you have RL here, and this you have V output. So current is flowing like this for positive cycle. Okay, so no voltage drop is here because this is short circuit. So here voltage drop is 0. So whole the voltage is coming here. Okay, so your whatever input you're applying, that input is coming to the as it is. Okay, so say this is 0. Okay, this is T by 2 T. You can put 0 pi 2 pi also. So this is 0 to T by 2. Okay, so this is your output. Okay, for negative cycle what will happen? This is वो Diode open रिवर्स circuit बायस हो हो जाएगा। जाएगा सर। Positive तो cycle. open biased हो जाएगा, it acts as a open circuit. ओके, सो रिवर्स बायस में क्या होगा? ये आपका सर्किट है। ओके, आपकी ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। और ये आपका क्योंकि रिवर्स बायस ये ओपन हो गया, ठीक है। एंड दिस इज योर सर्किट RL. सो नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। ओके, सो आपका V आउटपुट कितना हो गया? V आउटपुट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। करंट में सर्किट फ्लो कर ही नहीं रहा है, ठीक है। सो V आउटपुट इज 0. दैट मींस दिस इज योर 0 or not up to T you are getting 0. Okay, so this is your output of half wave rectifier. Output of half wave rectifier. Okay, now I want to calculate what is the average or DC value of output. Okay, average output कितना है full cycle के लिए? So this is your full cycle. अब इसमें बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। अब दिखने में तो ये बहुत आसान है, ओके, पर जब इस पे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, ठीक है। सो वील सी दैट। ओके, नाउ सर ये डीमॉड्यूलेशन में भी ऐसा ही कुछ वर्क करता है ना, डीमॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन वेव्स में। अब यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ रेक्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है।
diode sir. है, we are rectifying. Okay, now some interesting things are there. You have to understand the differences. Okay, so because जो क्वेश्चन डिजाइन करते हैं तो उसमें काफी गलती हो जाती है. इवन आई हैव डन several time mistakes, okay, while doing these things. Okay, so you have to clearly understand now what I'm saying. This is output of half wave rectifier. Okay, so now I want to calculate V average of output, V average of VDC level. Okay, VDC. So how can I calculate VDC? बताओ कैसे करेंगे VDC? सर एवरेज ले लेंगे वेव का. एवरेज लेंगे 1/t. ओके, टू 0t. ओके, मेरा इनपुट क्या था? सॉरी, मैंने इनपुट बताया नहीं था. मेरा इनपुट है V max sin omega t. This sine wave. Okay, so this is Vm and this is also Vm. Okay, so I'm calculating now VDC. Okay, so this is 0 to t. This is my V output. Okay, क्या लिखूं इस पे? V output. Okay, dt. Yes sir. Yes sir. Okay, so now I can break this one. So 0 to t by 2, I'm getting Vm equal to V equal to V input sin omega t dt, and from t by 2 to 0, I'm getting 0. Okay, dt. So if we solve this one, this is 1 by t Vm by t. Okay, साइन ओमेगा टी करेंगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी. ओके, अपॉन ओमेगा, एंड लिमिट इज 0 to t by 2. ओके, नाउ सर हाँ, वो था सर, डाउट था सर, डीसी तो सर वीआरएम से वो होता है ना सर? वो फॉर्मूला देख लेना कैसा आ रहा है, वो देख लेना. ठीक है, निकालना तो पहले एवरेज ऐसे निकालते हैं. ओके सर, ओके. ठीक है, T/2 to T. so now if you solve this with 0, we'll solve this one Vm by t. okay, और माइनस को तुम लिमिट चेंज कर दो, तो इसको जीरो पहले कर दो, तो cos 0 इक्वल टू 1 माइनस व्हेन यू पुट t by 2, तो ओमेगा is 2 pi by t, and you put t by 2, so you become pi. So cos pi is -1, again +1. Okay, so you will get how much? 2 Vm. Now t क्या है? T omega. Okay, T omega, and omega is again 2 pi t. So t से t कट गया, 2 से कट गया, Vm by pi. एवरेज वैल्यू कितना आ गया? Vm by pi. Vm by pi. Okay, that means अब यहाँ से थोड़ा याद करने के जो हम करेंगे, इसको आगे यूज करने वाले हैं. तो if my sine wave is like this, यहाँ से लेके यहाँ तक t by 2 t. okay, if my sine wave is like this, then my average value of this whole cycle is Vm by pi. ठीक है, इतना क्लियर है? Yes sir. ओके, अगर मैं इसी साइकिल को मैं ऐसे कर दूं, ऐसे बना दूं, ठीक है, तब एवरेज कितना आएगा? Minus Vm by pi. Minus Hmm? Vm by pi. एवरेज कितना आएगा? माइनस Vm by pi. Vm by pi. क्लियर है ये? इसमें डाउट तो नहीं है? ठीक है, नेगेटिव साइकिल में तो जीरो होना चाहिए ना सर. वो तो अच्छा, नेगेटिव साइकिल में ऐसा वी एम बन गया है. साइन, अगर साइन ओमेगा टी का एवरेज निकालते हैं, साइन Yes, ओमेगा टी का sir. एवरेज कितना आता है? साइन ओमेगा टी का जीरो. साइन ओमेगा टी का एवरेज 0 आता है. ठीक है, यस सर. इसका मतलब क्या है कि इस पूरे का आ रहा है टी तक Vm by pi. इसका मतलब, यस सर. और इसका क्या आ रहा है? माइनस Vm by, तभी तो 0 होगा वो. अच्छा, ओके सर. ठीक है, सो दैट मीन्स ये क्या है? ये भी साइन वेव है, जिसमें t by 2 t2 ये 0 है. ये भी साइन Okay. वेव है, दिस आल्सो साइन वेव. यस सर. इसमें 0 to t by 2 का पोर्शन 0 है. ओके, फॉर Yes, एग्जांपल अभी मैं इसको क्लियर कर, यहाँ तक ये क्लियर है ना? ये क्लियर है? यस सर, ये तो क्लियर है सर. ठीक है, अब आगे देखो. अब मुझे सपोज मेरी साइन वेव है, ठीक है,
मुझे मेरा आउटपुट भी साइन वेव ही आया है, चलो है। तो साइन वेव का एवरेज कितना आता है, साइन वेव का एवरेज कैसे निकालता है? सपोज ये मेरा वी आउटपुट आया है, ठीक है ना, ये मेरा ओमेगा टी है। तो साइन वेव का आउटपुट कैसे निकालेंगे? माय वी आउटपुट इज नाउ वी एम साइन ओमेगा टी। Okay. So what I will do, 1 by t, okay, 0 to t Vm sin omega t dt करूंगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा? जीरो जीरो आएगा। ओके, अब निकाल के देख लेना, जीरो आएगा, ठीक है। अगर इसी इंटीग्रेशन को मैं अगर ब्रेक कर दूं, 0 to t by 2 0 to 2 Vm sin omega t dt प्लस 1 by t by 2t Vm sin omega t dt। ये सही है क्या? Can I break this one like this? Yes sir. यस सर तो ये फिर ये माइनस क्यों नहीं है यहाँ पर? ये तो माइनस सेकंड हाफ में तो माइनस है ना ये, Yes sir. Yes sir. तो क्यों नहीं है माइनस माइनस? आएगा सर, माइनस आएगा? यस सर। अच्छे से बताओ, आएगा नहीं आएगा? सर आएगा सर माइनस। अरे नहीं आएगा सर आएगा, इंटीग्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि माइनस ये आएगा, जब वो आपने cancel लिमिट होके की zero है आ तो जाएगा। लिमिट के कारण माइनस नहीं आएगा। नहीं आएगा माइनस, क्योंकि ये लिमिट है ना, दिस विल टेक लिमिट केयर ऑफ चेंज। दिस विल टेक केयर ऑफ माइनस। ओके, यस सर। इक्वेशन जब हमने कल क्वेश्चन किए थे उसमें हमारी स्क्वायर वेव थी, तो उसमें कोई इक्वेशन था नहीं। ओके, सो देन तो सपोज स्क्वायर वेव है, सपोज उसका वीएम है, ओके, वीएम है 0 to t by 2 एंड देन माइनस वीएम है t by 2 t to t। ओके, देन वी हैव टू टेक माइनस व्हेन वी आर डूइंग एवरेज और एडिंग समथिंग जो भी आउटपुट आ रहा है। बट हियर दिस equation, okay, limit itself take care of minus, okay, so no need to put this one, okay, minus। अभी इसी integration को I can break like this, so this is 1 by t 0 t by 2 Vm sin omega t dt plus 1 by t by t 0 dt, okay, and now this is again 1 by t 0 to t 0 dt plus 1 by t by 2 t Vm sin omega t। ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? भी ये इक्वेशन है, इसमें मैंने जीरो ऐड कर दिया, ठीक है, और ये t by 2 है, इसमें मैंने जीरो ऐड कर दिया, तो कुछ गड़बड़ तो हुआ नहीं, ठीक है। नो सर, अब ये क्या है? ये क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर ये वाला है, ठीक है, ये वाला हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है साइन वेव का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस हाफ वेव पर इसका एवरेज निकालो, जो Vm by पाई आएगा, और फिर इसका इस वाले का मैं वो निकालू, वी एवरेज निकालू, जो कि माइनस Vm आएगा, और टोटल क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है, अगर मुझे इस साइन, हाँ, ये लिमिट जो स्प्लिट किया है ना आपने फोर हाँ। क्वांटिटी में, वो एक्सप्लेन करोगे? मतलब वो नहीं समझ में आ रहा है। बी 1 by t ये तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, ठीक है ना। ये फर्स्ट वाला ये समझ में आया, सेकंड स्टेप सेकंड स्टेप में मैंने जीरो कर दिया। जीरो तो किसी में भी ऐड कर सकता हूँ ना मैं, लेकिन लिमिट सेम रहने चाहिए ना, मतलब फाइनल जीरो में कुछ भी ऐड कर दूं। अभी हमने किया नहीं था क्या? जीरो में कुछ भी ऐड कर दूं, ये तो जीरो ही है, ठीक है, और ये भी जीरो ही है। तो अभी ये टोटल मिला के क्या हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है, एवरेज है, और ये क्या है? ये भी हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है, ये वाला। यहाँ माइनस नहीं करना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसको ये भी साइन वेव है, वही मैं कह रहा हूँ पॉइंट। दिस इज साइन वेव विथ second half is 0, this is also sine wave whose first half is 0, but here सॉल्व करने के लिए इसको माइनस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी करोगे तो जीरो आएगा ना, इन दोनों को ऐड करोगे जीरो आएगा, और वैसे भी इसका जीरो आना चाहिए। सो दैट्स आई एम टेलिंग, अगर साइन वेव के टाइप का आउटपुट आ रहा है आपके क्वेश्चन में, ओके, तो या तो आप डायरेक्ट उस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर दो, जैसे ये किया है अभी 1 by t2 ये, ओके, ये एक तरीका है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप उसको दो रेक्टिफायर बना दो हाफ रेक्टिफायर बना दो, और उनका एवरेज निकाल के, इसका एवरेज निकालो, इसका एवरेज निकालो, दोनों को जोड़ दो। अब क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर का आंसर हमको पता रहता है कितना, Vm by पाई, पीक पता है, पीक बाय पाई, पीक वोल्टेज कितना है डिवाइड बाय पाई, तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है,
हमको पता है ये वीएम बाई पाई माइनस वीएम बाई पाई, दोनों को ऐड कर देंगे। अभी इसमें तो क्या है, साइन वेव में दोनों बराबर है, पर हो सकता है जरूरी बराबर ना हो, क्वेश्चन में आपका आउटपुट ऐसा है कि बराबर नहीं हो, तो यू कैन डायरेक्टली ऐड। ओके, क्लियर? सो Yes, sir. इसका एवरेज निकालना है, दैट इज इक्विवेलेंट टू ये एवरेज फुल साइकिल के लिए एंड दिस एवरेज फॉर फुल साइकिल। ओके, दिस वन थिंग। अभी और क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आप गलती ना सर करो। एवरेज ऑलवेज जीरो रहेगा। अगर इक्विवेलेंट, अगर वो बराबर है तो जीरो रहेगा। अब ये बराबर नहीं है, ये छोटा हो गया, देन जीरो नहीं रहेगा। वो देखना पड़ेगा और उसका। तो फिर साइन और कोसाइन वेव के लिए भी हमेशा जीरो ही आएगा ना, कोसाइन के लिए भी वैसा ही होगा ना? अभी रेक्टिफायर में क्वेश्चन तो आएंगे, फेस करना पड़ेगा, उसको हम अभी कर नहीं रहे हैं। अभी हम साइन वाले ले रहे हैं। ओके, रेक्टिफायर में जो साइन आ रहा है उसको कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। वीएम बाई पाई और माइनस वीएम बाई पाई में डिफरेंस भी आ सकता है। हाँ, डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंस आएगा तो एवरेज में डिफरेंस आ जाएगा, फिर जीरो नहीं आएगा अगर उनका पीक नहीं है तो, ठीक है। सो ना एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं, उसको मैं दो तरीके से करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी ताकि कोई नया क्वेश्चन भी आए तो उसको डील कर लो एग्जाम में, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन इज गिवन, दिस इज नेट जेआरएफ, आई थिंक 19 और 20 में आया है। ओके, सो दिस इज, इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे, जैसे आप करते हो वैसे भी करेंगे, और जो मैंने बताया उस तरीके से भी करेंगे, ठीक है। दिस इज माय RL, okay, and they have given one more resistance RS and given RS equal to RL. Okay, दोनों बराबर है, I said R. Okay, and V as given, this V input is given V naught sin omega t. Okay, so they are asking what is the average of output. Okay, V output, what is the average? Okay, तो सबसे पहले तो V अप्लाई है प्लस साइकिल, ओके, पॉजिटिव साइकिल। सो पॉजिटिव साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ओके, सो सपोज दिस इज माय V इनपुट, this is VM. Okay, now I am applying positive cycle. ओके, पॉजिटिव साइकिल में कितना आएगा, मेरा आंसर कितना आएगा? P naught by pi. क्योंकि ये शॉर्ट हो गया, ठीक है, ये शॉर्ट हो गया तो करंट यहाँ से जाएगा नहीं, जो सीधा यहीं पे आ जाएगा। ओके, क्लियर है? तो आपको जो एज इट इज वीएम बाय पाई, ये ऐसा कैसा आ जाएगा, ये भी वीएम आएगा। ओके, नेगेटिव साइकिल में क्या होगा? RS से जाएगा और फिर RL से भी ये पॉजिटिव साइकिल है, ठीक है, तो पॉजिटिव साइकिल में ये शॉर्ट हो गया, ये Yes, शॉर्ट हो sir. गया, ठीक है। नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, ये आपका माइनस है, ये प्लस है, सर्किट ये ओपन सर्किट हो गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया और RS से जाएगा और ये रेजिस्टेंस हो गया, RL हो गया, ठीक है। तो अब क्या है, ये RS भी है, RL भी, दोनों बराबर ही है, तो दोनों से जाना पड़ेगा ना इसको, इनपुट Yes, को। sir, yes, sir. ओके, और दोनों बराबर है तो हाफ यहाँ पे आएगा, हाफ यहाँ पे आएगा, ठीक है। करेक्ट है कि नहीं है? आपकी ये क्या, ये पहले यहाँ था, आपकी उल्टा आ जाएगा, तो साइन माइनस में आएगा पर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड? क्योंकि डिवाइड हो रहा है, V हाफ naught हो by गया 2. पहले से। VM/2, ठीक है। अब निकाल लो एवरेज इसको। सर हाफ इसलिए हो रहा है क्योंकि RS से भी जा रहा है और RL हाँ, से भी जा रहा है इसलिए ना? दोनों में डिवाइड हो जा रहा है। यस सर। अब Okay, तुम्हारा sir. ये भी साइन वेव ही है, ठीक है, Yes, sir. जैसे साइन वेव का जैसे एवरेज निकालते हो वैसे एवरेज निकाल दो, बट ये है कि साइन चेंज नहीं करना है क्योंकि साइन वेव मान रहे हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को, चलो दिख रहा नहीं यहाँ से नीचे, अभी इसी चीज को मैं बोल रहा हूँ प्लस साइकिल के लिए मेरा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, ये वाला प्लस साइकिल के लिए आया, और सेकंड साइकिल के लिए मेरा क्या आया, सेकंड साइकिल के लिए मेरा ये 0 आया, और यहाँ से मेरा VM/2 आया, VM/2 दिख रहा है, Vmax/2। ओके, तो मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ ना, अगर मैं मान लूँ कि इसका जो एवरेज है इन दोनों का एवरेज इक्विवेलेंट है जैसे पहले किया था, तो इसका एवरेज कितना आएगा, तो V एवरेज V naught by pi.
ओके Vm by pi माइनस Vm by 2 pi और Vm की जगह यार V नॉट दे रखा है उन्होंने, V नॉट दे रखा है, V नॉट तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर V नॉट बाय 2 pi। Yes, sir. ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया। अब चाहो तो आप इक्वेशन बना के कर लो। सर सेकंड केस में हमने Vm by 2 pi क्यों लिया? पीक अपॉन पाई ऐसा हमारा आंसर आ रहा है ना। हाँ तो पीक क्या, पीक सेकंड केस में तो पीक V नॉट बाय 2 है ना, हाँ कम हो रहा है। पीक V नॉट। बस खाली आपको ये डीसी पता है तो यू कैन सिंपली इसको करने की जगह इसको ऐसे इसको डिवाइड कर लो, इस पूरे को ये वाला और ये वाला। लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं करना कि ये हाफ ही करना है तो गड़बड़ हो जाएगा, फुल साइकिल करना है। फुल साइकिल के लिए इसका एवरेज, क्योंकि हमने ऐसे ही किया था फुल साइकिल का एवरेज, फुल साइकिल का एवरेज, तो इसका एवरेज कर दिया था, आंसर V0 2.2 पे आ गया। अब इसको तुम वैसे जैसे तुम करते हो एग्जाम में, इस क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप जैसे करते हो वैसे कर निकाल लो। बी एवरेज 1 by t, ओके 0 to t, आपका इनपुट क्या है V0 साइन ओमेगा t, ये 0 to t by 2 के लिए इतना है, एंड t by 2 to t ये V0 by 2 है साइन ओमेगा t। इसको इंटीग्रेट कर दो, बताओ कितना आंसर आ रहा है। एवरेज ऐसे निकालते हो ना आप? हाँ सर निकालते तो ऐसे ही, लेकिन हमें ये पहले से पता है, पहले बता दिया कि मतलब Vm by pi के फॉर्म में आता है, हाँ तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ना। डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। Yes, अब इसका फायदा डायरेक्ट लिख के याद रखने का फायदा है कि दूसरे क्वेश्चन में जब हाँ सर आ रहा है ना इससे भी, यस सर। ठीक है, तो दोनों जैस्मिन दोनों आंसर सेम है, तो मतलब आप जब भी साइन वेव आएगी तब इस तरह का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। हाँ बोलिए। ये लास्ट टाइम हमने बताया था लेकिन मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ नेगेटिव V0 by 2 हम क्यों नहीं ले रहे हैं, मतलब हाँ, t by 2 to तो t के लिए। क्योंकि हम इक्वेशन ले रहे हैं ना, वो t by 2 to t, या तो अगर इसमें इसको नेगेटिव लेना है तो इसको 0 to t by 2 करो, इसको सेपरेट साइकिल मान लो, क्योंकि आप साइन वेव मान रहे हो और t by 2 t लगा रहे हो, तो इस साइकिल में साइन वेव वैसे नेगेटिव होता है, तो दैट्स व्हाई दिस लिमिट्स टेक केयर ऑफ दिस माइनस साइन। सर एम्पलीट्यूड का पार्ट नेगेटिव है ही ना, हाँ लिमिट तो वो लिमिट में कहाँ नेगेटिव है? तो लिमिट लगाओगे जब साइन 0 to पाई, साइन का साइन आप इक्वेशन ले रहे हो ना साइन की, इक्वेशन तो ये 0 to पाई, ये पाई to 2 पाई, उसमें वो नेगेटिव आ जाता है ना अपने आप ही। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इट्स, वो करने की जरूरत नहीं है, वरना तो आप साइन का एवरेज निकाल के देखो, इसका एवरेज निकालो इस फॉर्मूले से, तो अगर माइनस कटोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, बिना माइनस करे ही आंसर आ रहा है, ठीक है। अभी तो मैंने बताया इसको आपको मैंने, okay. So now this is one question, okay, in GRF clear है ये, आगे चले। हाँ सर। okay. Now you understand why I split it this one, okay। ये क्वेश्चन दूसरा करते हैं जो गेट इसी में आया है, ठीक है। So this is one diode, okay, this is 100 kilo ohm, okay, so this is diode D1 and this is given 6 pi sin omega t, okay, and then we have minus, okay, this one 10 kilo ohm, and then this is 20 kilo ohm, okay. Now find out the average value, okay, across this 10 kilo ohm resistance, plus minus you have to find average value of VAB, say this is A, this is B, average value of VAB across this 10 kilo ohm resistance, okay। कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन क्लियर है? You have two diodes D1 D2, okay। now output चाहिए आपको
is 10 kilo ohm resistance across. Okay, so first we apply a positive cycle. Okay, now you have given a input cycle whose magnitude is 6 pi volts. 6 pi volts. Okay, Vmax. Okay, so when applying positive cycle तब क्या हो जाएगा, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. तो पॉजिटिव साइकिल के लिए ग्राफ बना दो, सर्किट बना दो, बी आई ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव साइकिल. सो पॉजिटिव साइकिल के क्या बन जाएगा, दिस वन, दिस 10 किलो ओम. सर VL क्या 10 किलो में सर? कौन सा? D1 शॉर्ट हो रहा है ना सर? ये 10 किलो, ये 10 किलो ओम है, 10 किलो ओम है, ये 10 किलो ओम के अक्रॉस निकाल रहे हैं, ठीक है. दिस इज 20 किलो ओम एंड दिस इज 100 किलो ओम. ओके, सो तो अभी ये यहां से जुड़ा हुआ है ना, ठीक है. इसका मतलब क्या है, यहां से जुड़ा हुआ, इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल है, इसके पैरेलल है. ओके, ये 6 पाई साइन ओमेगा टी, ये क्या है, ये यहां जुड़ा हुआ है, इसका मतलब दीज आर पैरेलल. तो जो वोल्टेज आ रहा है वो कहां ड्रॉप हो रहा है, 10 किलो ओम प्लस 20 किलो ओम पे. तो मुझे चाहिए 10 किलो ओम पे. 10 किलो ओम पे कितना आ जाएगा, सो वोल्टेज अक्रॉस से, दिस इज से सपोज फर्स्ट साइकिल में ना, पॉजिटिव साइकिल में, तो V प्लस कितना आ रहा है, तो टोटल वोल्टेज 6 पाई. ओके, 6 पाई मैक्सिमम निकालेंगे कि वो निकालेंगे, जस्ट 6 pi upon sin omega. हाँ, ओके, सो 6 पाई साइन ओमेगा टी, ओके, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 30 किलो ओम इनटू 10 किलो ओम. ये क्लियर है? Yes sir. भी अब ये दोनों पैरेलल है ना, तो जो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है उन दोनों पे ड्रॉप हो रहा है, तो इन दोनों पे टोटल कितना ड्रॉप हो रहा है, 6 पाई टोटल 30 इनटू 10. ओके, सो दिस क्लियर, दिस इज किलो ओम कैंसिल. ओके, सो दिस बिकम 2 पाई साइन ओमेगा टी. ओके, 2 पाई साइन ओमेगा टी. सो माय इनपुट क्या आएगा मेरा यहाँ पर, मेरा इनपुट क्या आएगा, 2 पाई पॉजिटिव साइकिल सर. हाँ 2 पाई आएगा पॉजिटिव साइकिल के लिए. 2 पाई आएगा, वेरी गुड. तो यहाँ पे क्या पी वी मैक्स क्या आ गया, 2 पाई आ गया मेरा. यस सर. ठीक है, अच्छा, अब आपको करना है नेगेटिव साइकिल के लिए, ये मेरा पॉजिटिव साइकिल के लिए आ गया, खाली मेरा मैग्नीट्यूड कम हो गया, 6 पाई था, 2 पाई हो गया. अब नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, D2 शॉर्ट. D2 short. माइनस 6 पाई बाई 11. तो D2 में क्या हो जाएगा मेरा, हाँ, ये मेरा ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा शॉर्ट हो जाएगा. देन हाउ कैन आई ड्रॉ द सर्किट. ओके, तो ये ओपन हो गया मेरा यहाँ से. ओके, तो दिस इज माय 10 किलो ओम. ओके, दिस इज 20 किलो ओम एंड दिस इज शॉर्ट. ऐसा हो गया क्या? Yes sir. Yes sir. सर तो अभी कैसे निकालोगे तुम, अभी कैसे निकालोगे, अभी इनपुट सर क्या आ रहा अभी है? ये पहले वो बन जाएंगे सर. अभी सर हम्म? ये जो 110 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक 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 है, तो कितना आ रहा है बताओ, कितना आएगा बताओ. सो ये दिस वी कैन, आई कैन पुट इट हियर. ओके, 10 किलो ओम. ओके, 6 pi by 11. 6 पाई है ना, V माइनस ना, 6 पाई बाई 11 कैसे आएगा, सर जो 10 किलो ओम और 100 किलो ओम है उस पे 6 pi sin omega t वोल्टेज लग रहा होगा, है ना? भी ये मेरा हो जाएगा 6 पाई साइन ओमेगा टी. ओके, दिस 110 किलो ओम. ओके, आई वांट अक्रॉस 10 किलो ओम. सो 10 किलो ओम बनेगा ये 6 by 11 or something mistake is there. Let me check the circuit again. This is open, so this is open. Okay, so this is coming like this. 6 pi आ रहा है. Wait ना, कितना आएगा, so this circuit become here 10 kilo ohm
10 kilo ohm. Okay, so how I did it? Okay, 10 kilo ohm by 30 kilo ohm. Okay, नहीं अभी देखो ना, अब यहां से करंट आ रहा है ना भाई, ये करंट आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकालो, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा 30 और 100, क्योंकि अभी करंट करंट डिवाइड तो होगा ना, 20 किलो ओम है ना, 30 नहीं। भी करंट डिवाइड होगा ना, यहाँ पे करंट डिवाइड होगा इन दोनों में, तो यहाँ पे करंट कितना आएगा, यहाँ पे 110 और 20 20। पैरेलल में हो जाएगा ना फिर। हाँ तो करो कितना आएगा, 110 और 20 ना सर, हम्म पैरेलल में आएगा ना 110 सो and 20। v माइनस 220 by 13 आ रहा है। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस 20, ओके, पैरेलल and टू then 110। 110, okay, यस सर। okay, so 20 110 and this become 20 by 130 30। 130, okay, 220 by 13। so so current becomes 16.92 kilo. 6 pi sin omega t, okay, divide by into 30, okay, और कैंसिल कर दो इसको, so 20 11 into 13, okay, 13 है सर, 13 है। 13, okay, ये हो गया I, now it will divide, now this current will divide, okay, तो मुझे इसमें करंट चाहिए, तो यहाँ इसका रेजिस्टेंस 20 किलो ओम डिवाइड बाय 1110 किलो ओम, ठीक है, ये होगा आंसर। अब कितना आ रहा करंट निकालो। सर हाँ ये कैसे हो रहा है सर? 110 ये क्यों इनका किया? कॉम्बिनेशन बनेगा सीरीज वाला। भी आई एम कैलिंग अच्छा, करंट वाला तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ना नाउ सर वोल्टेज वाला करंट वाला। okay, now current, okay, 20 cancel, now if I have voltage, so voltage we will multiply by 10 also, so this is 6 pi sin omega t, okay, into 13 into 11 into 110 into 10 kilo ohm। ये सब मिस्टेक है सर, नहीं आई थिंक क्वेश्चन में, तो मैं क्वेश्चन चेक करना था मुझे, क्योंकि ये तो आंसर नहीं आ रहा है। 110, okay, this current go like this, okay, 10 kilo ohm by 30 kilo ohm, okay, some mistake is there, okay, कितना आ रहा आंसर, निकाल के बताओ कितना आ रहा आंसर। सर 39 पाई बाय 1210। फाइनल आंसर कितना आ रहा है, फाइनल निकाल के बताओ, फाइनल कितना आ रहा है, ओके, एंड गिव मी 1 मिनट, ओके, लेट मी चेक मैंने क्या क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी है। Just give me 2 minutes. क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 15 16 सर हाँ एक कुछ नहीं सर, एक जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मुझे लगता है कुछ आई हैव ड्रॉन रॉन्गली समथिंग, ओके, क्वेश्चन सेम क्यों नहीं आ रहा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ बोलिए। अच्छा ये पहले भी हमने 100 लिया था क्या? रेडी था। हाँ यस सर। ये एक्चुअली 10 दे रखा है, पहले क्वेश्चन में कुछ गलती हुआ था किसकी वजह से, नहीं हुआ था ना? सर 10 किलो तो It is- सब कुछ चेंज हो जाएगा। नहीं कैसे चेंज होता, चेक करो एक बार, चेक करो कैसे चेंज होगा, चेक करो। रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंस चेंज होगा ना। ये पहले क्वेश्चन हाँ पहले सर उसमें हम लोगों ने वोल्टेज वाला केस लगा दिया था, मतलब पैरेलल में वोल्टेज, तो इस वजह से उसमें गलती नहीं आ रही थी। गलती नहीं आ रही थी ना, अब गलती आ रही है, तो ये 10 है, 100 नहीं 10 है, अब मूवी का ना गलती हो रही है, ये 10 है, अब करो ओके, दिस इज 10, सॉरी। सर अर्लियर केस में हमने 10 ही लिया था ना, V प्लस निकालने के लिए। चेक करो उसमें इसके कारण गलती नहीं आएगी, वो अगले केस में इस अब निकालो इसको कितना आ रहा है, B माइनस कितना आ रहा है, तो पैरेलल ही है 10 10
कितना आ रहा 10 है आएगा सर 10 सर 3 पाई साइन ओमेगा टी 3 पाई, वेरी साइन गुड, ओमेगा टी ये 6 आएगा पाई sin ओमेगा t 3 पाई साइन ओमेगा टी आना चाहिए आंसर। 3 बाई 3। कैसे 2020 दो ही दोनों 2020 ही होगा ना, सो वो कैंसिल हो जाएगी, तो 6 पाई so 20 करंट इज कमिंग हियर, 2020 पैरेलल हो गया ना, तो कितना हो गया 40, ओके, सो दिस बिकम 10 हो गया, ठीक है। हाँ तो 6 पाई साइन ओमेगा टी अपॉन 10 तो 6 पाई sin omega t by 10, this is current, okay, and now you want current in this one, so you get 20 divided by 20, okay, सही है, और 10 is correct or not? 6 आ रहा है सर ये 2020 अपॉन 10 कैसा है सर? तो 30 सर, 20/30, ठीक है, 20/30, 20 अक्रॉस 20 किलो ओम आप निकाल रहे हो ना करंट? हाँ तो 20 अपॉन 20/40 होगा। करंट निकालना है ना। 20 अपॉन 40 40, ओके, सॉरी, 20/40 अब आएगा कितना आ रहा है? ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, 1/2, तो 3 पाई 3 पाई आ रहा है। sin ओमेगा टी, ओके। सर ये जरा बताइए कैसे लिया आपने? बे अभी देखो, करंट पहले बी 2020 करंट निकाल लिया, तो 6, तो इन इसका 2020 का 10 आ गया, तो ये करंट आ गया, दिस इज करंट वैल्यू, ओके। नाउ करंट इज डिवाइडिंग इन पैरेलल सर्किट, ओके, ये 20, ये भी 20 है, तो 20 और टोटल सम 40 ले लिया, ठीक है। अब हमको चाहिए वोल्टेज इन 10 ओम, ये करंट मिल गया, ओके, सो वोल्टेज चाहिए इनटू 10 किलो ओम, तो मल्टीप्लाई कर दिया वोल्टेज से करंट को, तो ये V माइनस हो गया मेरा, तो ये 3 पाई साइन ओमेगा टी आ रहा है, ओके, ये क्लियर है? यस सर। ओके, सर इसमें 20 किलो ओम के अक्रॉस हम लोग वी निकाल रहे हैं ना? 10 के निकाल रहे हैं, 10 के, और डायरेक्शन क्या है इस बार? अच्छा डायरेक्शन क्या है? 10 के निकालना है, तभी 20 अपॉन डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन वैसे ही जो जैसे पहले थी, ठीक है, डायरेक्शन वैसी ही आउटपुट की जैसे पहले थी, तो अभी हमको डायरेक्ट में सेकंड में भी यही मिल रहा है, विथ 3 पाई, जैसे जैसे हमको आउटपुट में क्या है, आपको वो साइन वेव नहीं है, अब दोनों पॉजिटिव है, दोनों का पीक अलग अलग है। तो पहले क्वेश्चन में कितना आ रहा था हमारा एवरेज, कितना आ रहा था बताओ, कितना आ रहा है एवरेज पहले में? बी 2 पाई sin ओमेगा t so 2 पाई बाय पाई, दिस इज एवरेज, ओके, 2 पाई sin ओमेगा t एवरेज बोल रहा हूँ, एवरेज कितना आएगा, एवरेज पीक 2 वैल्यू, पाई बाय पाई पीक वैल्यू डिवाइड बाय पाई, ओके, एंड सेकंड में पॉजिटिव ही है, करेक्ट सेकंड में कितना है 3 पाई डिवाइड बाय 5, ये वोल्ट्स है, ओके, वोल्ट्स बाय पाई, ओके, तो कितना हो जाएगा 5 वोल्ट्स, सो 5 वोल्ट्स इज योर आंसर फॉर दिस वन। सर हाँ अभी रुको बता रहा हूँ, अभी इसमें हमने कैसे किया है, अब इसमें कैसे किया, अगर मेरा आउटपुट आ रहा है ऐसा, अगर मेरा आउटपुट आ रहा है इस टाइप का, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एवरेज कैसे लूंगा, अगर मुझे हाफ डीसी का एवरेज लेना है तो कैसे लूंगा, तो मैं इसको स्प्लिट करूंगा, दिस इज माय वन, दिस इज वन साइन वेव, ओके, जो हमको पहले V प्लस 1 में मिला था, सेकंड टाइम में मेरा आउटपुट ये आ रहा है, ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दिस वन एंड दिस इज माय सेकंड पोर्शन, तो दिस इज माय हाफ रेक्टिफायर, दिस इज हाफ रेक्टिफायर, इसमें सेकंड पार्ट 0 है, इसमें फर्स्ट पार्ट 0 है, ओके, एवरेज सेम ही आएगा, अगर इसका एवरेज निकालोगे आप किसी वीएम करके, इसका निकालो, एवरेज तो सेम ही आएगा दोनों का, ठीक है। तो अभी इसलिए मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, जैसे ये 2 पाई बाय पाई प्लस 3 पाई बाय पाई आ गया आंसर। आप चाहो तो डायरेक्टली भी करके देख सकते हो। सर हाँ अगर यही 3 पाई नेगेटिव होता तो हम लोग लिखते 2 पाई बाई पाई माइनस 3 पाई बाई पाई, राइट? हाँ नेगेटिव होता तो माइनस कर देते, अगर माइनस होता तो सर बस। sin ओमेगा t का जो पोर्शन था वो मतलब सिर्फ हम एवरेज वैल्यू ले रहे, वहाँ कैंसिल हो रहा है क्या, ऐसा कुछ? किसमें? साइन इसमें हमें v टोटल जो निकाला, तो v प्लस को हमारा sin ओमेगा t का फैक्टर था ना। हाँ वो दोनों इसमें अभी हमको तो डीसी वोल्टेज चाहिए ना, एवरेज वोल्टेज चाहिए, तो एवरेज वोल्टेज निकाला था ना, फॉर्मूला क्या आता है, पीक वोल्टेज, ये आपने पहले इक्वेशन निकाल ली, उसमें देख लिया पीक वोल्टेज कितना है, तो हमारा 2 पाई sin ओमेगा टी आया था, तो पीक वोल्टेज 2 पाई है, तो एवरेज क्या है 2 पाई बाय पाई, ठीक है, और इधर एवरेज क्या है 3 पाई बाय पाई, तो टोटल 5 वोल्ट आ गया,
ठीक है, अब ये क्योंकि अब इस पे आउटपुट, हाँ आउटपुट पे डायरेक्टली कैसे लगाओगे, एवरेज निकालना है, क्योंकि ये साइन वेव थोड़ी है अभी, इसका कोई इक्वेशन तो है नहीं इसका, क्योंकि अभी तो ये साइन वेव तो है नहीं है, एक 2 पाई है और एक 3 पाई है, तो अगर इन दोनों का एवरेज निकालना है तो कैसे, कोई इक्वेशन तो है नहीं, कैसे निकालोगे, ये ना तो ये साइन स्क्वायर है, ऐसा भी नहीं हमको गिवन भी नहीं है कि साइन स्क्वायर है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, इनको हाफ रेक्टिफायर में स्प्लिट कर दो, ठीक है, जैसे जैसे पहले किया था, पहले यहाँ था, आपकी दोनों पॉजिटिव है तो भी क्या है, ये एक साइन वेव है जो 0 से स्टार्ट हो रही है, ये दूसरी साइन वेव है, ओके सॉरी ये नहीं है, सॉरी ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और फिर यहाँ जा रही है, ये हाफ रेक्टिफायर है, ओके, ये दो जो आउटपुट है, दिस इज इक्वल टू 2 आउटपुट्स, वन साइन वेव, दिस वन which start from here, second sine wave which start from here and this goes like this, दोनों का सम है, क्लियर, यस सर। ओके, तो ये चीज Yes, याद, sir. ये चीज याद रख लेना, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो उनको हाफ रेक्टिफायर के में स्प्लिट कर, साइन के क्वेश्चंस करके करने की कोशिश करना, और डायरेक्टली हो पा रहा था डायरेक्टली करके देखना, ठीक है। We'll discuss some more questions tomorrow, okay, so I am stopping here, okay, thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, Thank you, sir. sir.